Baruch hada Adonai Eloheinu melech haolam Borei hadabarim वतालमदीम आमीन। खबरहीम, आज हम एक नई बात सीखेंगे। We'll learn today a new thing. How we read Bible. हम बाइबल कैसे पढ़ते हैं, और इसी को हमको जानना है। क्या हम do we read Bible like other books? Because it's called Word of God. So we must read word by word, one word at a time. So how can we do that? So I'm going to explain that today. It is possible only in Hebrew, not in other translations. So we must learn Hebrew to read the Bible word by word. So I'm going to take a couple words today and explain it. And there are two words. One is Satan. Last few lessons we know about Yahweh and Yeshua and Abraham and other disciples. This time we'll take Satan. It's the adversary. And this name is very popular, and we're going to use Satan. But before that, I'm going to use some more words which are more popular. And the word Satan, when we try to find out, it was only available in First Chronicle 21:1, and that was the first time Satan has been used in Torah. So before that, I will start one alphabet, and it is called Sin. I'm using this alphabet because Israel map and Jerusalem map is designed like a sin. And Yahweh says, I will put my name on Israel. And this sin is called El Shaddai. So El Shaddai's name is on Jerusalem. And we know one story about Gideon. When Yahweh used Gideon to fight, so he says, take all the army and let them go home who want to go home. And the rest, whatever left, he says, take them to the water and let us see how they drink water. और जितनों ने घुटने टेक करके, कोई कुत्तों के तरह पानी पिया और कोई घुटने टेक करके अपने हाथ में पानी लिया और फिर पिया, तो फिर उसको सेपरेट किया यहोवा ने. And he separated two groups. And one group who kneel down and take the water on their palm and start drinking. They were 300 people. And why God used those 300 people to fight? Because that fight was for God, from God. So God wanted to have that fight. That's why he chose 300 people. And Sin, which is El Shaddai's name, it is the Gematria number of Shin is 300. So we know how God used El Shaddai's name is there, because that fight was El Shaddai's fight. It was not the Gideon's fight or Israelites, but it was the God's fight. So Yahweh fought that war. So we know, अगर आपको नहीं पता आज तक कि Gideon, why he used 300 people? Because 300 is the name of God. And God, the fight was from God. So he used that 300 people. So that's one secret we know. And it's called El Shaddai. Now we can come to the Chronicles 21. But before that, I'm going to use one popular name, which is David. The spelling in Hebrew is Dalet Vav Dalet. Some in English they say David,
Hebrew they say David, and some they say Dawood. So no matter what is David or Dawood, but the spelling is the same. Dalet, Waw, Dalet. And every alphabet has numbers, Gematria number. So Dalet is 4, Waw is 6, and Dalet is 4. So if we take this 464 and add it, it equals to 14. In Bible, you may see sometimes, very few times, like 1 Chronicle 21:1, David's name, the spelling has been changed. Dalet, Waw, Yod, Dalet. But the majority of the time, his name is, and his spelling is only Dalet, Waw, Dalet. केवल एक ही बार उसका आया है Dalet, Waw, Yod, Dalet. And that is on 1 Chronicle 21:1. And that's the time शैतान ने उसको भड़काया, और शैतान का नाम भी 1 Chronicle 21:1 में ही आया है. तो उसको हम देखेंगे. So let us talk about Dalet. Waw, Dalet. डेविड का नाम का क्या मतलब है? So when we add on this 464, that become 14. And जब हम मैथ्यू 1:17 में जाते हैं, so उसमें उसका डेविड का नाम जीनियोलॉजी में आता है. एंड वी सी डेविड से ऊपर 14 जनरेशन अब्राहम तक है, और डेविड के बाद 14 जनरेशन बंधुआई में जाने तक, कैप्टिविटी तक. फिर जब बंधुआई में दोबारा जाते हैं ये लोग, पहले तो मिस्र देश में बंधुआई में थे, और अब दूसरा बार ये लोग जा रहे हैं फिर बंधुआई में. तो तब वो पछताते हैं और माफी मांगते हैं यहोवा से और विनती करते हैं. तो 70 साल के बाद नेक्स्ट 14 जनरेशन जो होता है वो ईशुआ का होता है. यीशु मसीह आखिरी 14 जनरेशन में पैदा होता है. तो Abraham to David 14 generation, and David to deportation to Babylon was 14 generation, and from Babylon to Messiah, Yeshu Messiah, that's another 40 generation. So that 14 equals to 42. And 42 is Messiah's number. यीशु मसीह का नाम है. 42 जनरेशन में यीशु मसीह पैदा हुआ. अब उसको हम कैसे जाने? How do we know that Messiah's name is that? So here we can see 6 times 7, if you multiply, that's 42. 6 is the man's number. मनुष्य का अंक 6 है, और 7 जो है, 7 जो है, वो परफेक्शन का नंबर है. यहोवा का नंबर है, perfection. So man time perfection, that become perfect man. So Yeshua HaMashiach is the perfect man, और उसका नंबर है 42. So this is how we know. हर अल्फाबेट को जोड़ करके उसका नंबर मिला, और उसके बाद हमको दाऊद का मतलब मिलता है. अब हम जाते हैं शतान पे. शतान, उसको हा शतान भी कहते हैं, 10 शैतान. द के लिए हा इस्तेमाल होता है. सो हियर इज शतान. नाउ विल गो ऑन शतान. शतान नेम फर्स्ट टाइम इज कम इन 1 Chronicle chapter 21 verse 1, and Satan's spelling is like that: Sin, Tet and Nun. और Sin का गमात्रा नंबर है 300, Tet गमात्रा नंबर is 9, and Nun गमात्रा number is 50. Now here we see Tet. Tet is a number which is very few times used in Bible. और Tet का मतलब होता है coiled serpent. सांप जो है अपना कुंडली मार करके बास्केट पे बैठा हुआ है, पिंजड़े में. और ये आपको दिखाई दे रहा है पुराने अल्फाबेट में, जो पिक्टोरियल अल्फाबेट था, वो Tet ऐसा लिखते थे. तो ऊपर ये दिख रहा है हेड, और ये कॉयल, टेल जो है उसका कॉयल बन के बैठा हुआ है. तो ये शैतान का नाम ऐसा था. अब हम आते हैं तोरा पे. तोरा में, तोरा जो है वो जेनेसिस से लेकर के डिट्रोनोमी तक 5 books is called Torah. And in these 5 books, only we have 304, 805 letters. 304, 805
3 लाख कितना होता है 805, इतना अल्फाबेट, इतना ही लेटर हैं। और जो 10th लेटर है वो सबसे कम काम में इस्तेमाल किया गया है। 10th जो है वो केवल 1802 टाइम्स, 1802 बार इस्तेमाल किया गया है। और दूसरे जो अल्फाबेट हैं वो दूसरे तरीके से काम किए गए हुए हैं। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाला अल्फाबेट है वो है योद, और योद का नंबर है 10। और यहां आप देख रहे हैं योद एक हाथ जैसे है, फिर ये बाद में बदल के ऐसा हो गया, फिर उसके बाद वो आय जैसा हुआ, और आखिर में ये छोटा सा कामा जैसे हो गया। तो अब जो हमारे पास बुक है वो योद है। यहां हम देख रहे हैं यहोवा के नाम में योद है, और यहोवा का नाम का जो स्पेलिंग है योद है वाव है, और ये योद से शुरू होता है। और यीशुआ के नाम में भी योद है, इज़राइल के नाम में भी योद है, और यरूशलेम में भी योद है। तो देख रहे हैं, तो योद इज द वन जो सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल किया गया है पूरे तोरा में, 31,522 टाइम्स। एंड देन उसके बाद योद के बाद हे है और वाव है। वाव जो है वो सेकंड नंबर है, यहां आपको दिखाई देगा, ये पूरा लिस्ट है 22 अल्फाबेट में कौन कौन से अल्फाबेट कितने कितने बार इस्तेमाल हुए। योद सबसे ज्यादा हुआ है 31,522, उसके बाद वाव है 30,509 टाइम्स, और उसके बाद हे है 28,052 टाइम्स। और यहोवा के नाम में योद हे वाव हे, these 4 alphabets used most of the numbers। और बाकी आपको ये अलेफ 27,000 बार, बैत 16,000 बार, गिमल। तो ये इसी को कहते हैं मेडिटेशन, कि हम लोग बाइबल पढ़ते हैं शुरू से लेके आखिरी तक, 10 बार पढ़ लिए, 100 बार पढ़ लिए, फिर कुछ मेमोराइज करने लग गए। दैट इज नॉट कॉल्ड मेडिटेशन, दैट इज कॉल्ड रीडिंग और मेमोराइजिंग। लेकिन मेडिटेशन तो ये है कि कौन सा अल्फाबेट कितने बार इस्तेमाल हुआ, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ, यहोवा ने कैसे इस्तेमाल किया, कौन कौन से वर्ड बने, कौन कौन से अल्फाबेट बने, हाउ द वर्ड बीन यूज, हाउ द अल्फाबेट हैज बीन डायसेक्टेड, एंड व्हाट आर द नंबर्स एंड हाउ दे बीन यूज। तो दीज आर द थिंग्स इफ वी स्टार्ट लर्निंग, दैट विल बी कॉल्ड द मेडिटेशन। और वही मेडिटेशन हम करने जा रहे हैं। यहां हम शैतान का नाम फिर से मैं यहां लिख रहा हूं, शैतान, which is 3 alphabet, Sin, Tet and Nun, and here is their numbers 309 and 50. If we add this on, this will become 359. और ये the word Satan is used first time in the Bible in 1 Chronicle chapter 21 verse 1. It is not in Genesis, and it is not in all these books. Here is the books: Genesis, Exodus, Leviticus, and all these books, King up to King. There is no name of Satan. I was thinking Satan name will be there when he went to Begal, ईव, हवा को जब फंसाने गया था, फुसलाने गया था, तब उसका नाम होगा, लेकिन वहां उसका नाम सांप है, शैतान नहीं है। शैतान का पहला नाम जब इस्तेमाल हुआ वो है पहली बार जो इस्तेमाल हुआ वो पहला इतिहास चैप्टर 21 और 1 में। सो फर्स्ट टाइम व्हेन इट वाज Satan was found, it was the book of 1 Chronicle chapter 21 and verse 1. So when we started from Genesis 1 to 2 Kings, the total number is 338. Or then we got 1 Chronicle 21 chapter. If we add on that one, तब वो बनता है 359. And 359 जो है हमने देखा, that is the Satan's number. Satan's number is also 359. And Satan's first time Satan been used in the chapter 359. If we start from Genesis 1,
से लेकर के हम शुरू करते हैं और जब फर्स्ट क्रॉनिकल 21 में पहुंचते हैं तो वो बनता है 359 चैप्टर. So Satan's name been used first time in 359 chapter. Can you believe that? God has put Satan's name in the chapter 359 and Satan's Gamatra number is also 359. Wow. So this is like a computer. God has used the word. कहां कहां किस वर्ड को कहां कहां प्रोग्राम किया गया है. सो दिस इज व्हाट गॉड हैज प्लान. यहोवा का प्लान बाइबल में वर्ड बाय वर्ड है और किस वर्ड को कब और कहां कैसा इस्तेमाल करता है वही जानता है. तो धन्यवाद हमको प्रभु का कि हम अब इब्रानी सीख रहे हैं और अब हम इसके रहस्य को समझने लग जाएंगे. तो मैं यहीं पे अभी रुकता हूं थोड़ी देर और आपको बताता हूं कि ये जो 359 में शैतान का नाम आया है, ये शैतान का नाम यहोवा ने पहली बार तोरा में नहीं लेकिन पूरे बाइबल में इस्तेमाल किया है 359 चैप्टर में. और शैतान का जो गमात्रा नंबर है वो भी 359 है. ये कितने रहस्य भरा हुआ चीजें हैं. तो हम तभी जान सकेंगे जब एक एक वर्ड को हम ध्यान देंगे और उस पर विचार करना शुरू करेंगे, तब हम इन चीजों को जान सकते हैं. इसी को कहते हैं मेडिटेशन. तो जब हम मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, बाइबल पढ़ना, उसको मेमोराइज करना, दैट्स नॉट द मेडिटेशन. मेडिटेशन एक वर्ड को ले, जैसे हमने शैतान को लिया, शैतान का स्पेलिंग बनाया, उसका गमात्रा नंबर 359 आया. जब हम बाइबल में शैतान का नाम ढूंढने लगे तो पूरे बाइबल में जेनेसिस से स्टार्ट किया हमने ढूंढना, हमको कहीं मिला अप टू किंग्स, सेकंड किंग्स तक. फिर जब क्रॉनिकल फर्स्ट में पहुंची तो उसमें भी नहीं मिला 20 चैप्टर तक. लेकिन जब 21st चैप्टर में हम पहुंचते हैं, देन वी फाउंड हिज नेम ऑन chapter number 359 from Genesis to start, and that is the Satan's Gematria number. So God when God used some name, some words, it's a particular name in particular place and he put it, he programmed it. क्योंकि कंप्यूटर, बाइबल इज फुली कंप्यूटराइज्ड और पूरा वो प्रोग्राम्ड है. गॉड ने एवरी वर्ड, God has put every word in a proper programming. So when we learn Hebrew, then we can know how to decode those programmings and we can learn and we can know about this. So this is one of the secret. अब एक केवल यही बात नहीं है कि ये 359 चैप्टर में ही शैतान मिला पहला बार और शैतान का नंबर भी 359 है. आगे भी हम जाके देखते हैं, हमको डिसेप्शन हुआ है. शैतान का नाम ही डिसेप्शन है. आगे हम देखते हैं, अगर आपके पास ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो हमारे पास आजकल ग्रेगोरियन कैलेंडर हमारे पास होता है, तो जो कैलेंडर होता है, मैं उसमें पहले जाता हूं, आपको दिखा देता हूं, बाद में भी ये तनक पे आऊंगा. जो कैलेंडर है उसमें 12 मंथ्स होते हैं एंड 12 मंथ्स आर 365 डेज. हियर 365 डेज होता है पूरे कैलेंडर में हमारे. जब हम जनवरी से शुरू करते हैं गिनना, जनवरी न्यू ईयर से 1 2 3 4 एंड वी स्टार्ट काउंटिंग एंड वी कम टू 359 डेज. कैन यू बिलीव व्हाट डे इट इज? दैट इज December 25. Why? Because Romans, when they put Jesus' name, Jesus' birthday, यीशु मसीह के बर्थडे मनाने के लिए उन्होंने जब क्रिसमस का डे नियुक्त किया, तो रोमियो ने उस दिन को नियुक्त किया जिस दिन एक उनका खास त्योहार मनाया जाता था. रोमी देवताओं का एक देवता था, उसका नाम था ज़ूस. उसका बर्थडे मनाया जाता था 25 दिसंबर को. तो उन्होंने वहां के लोगों को बोला कि भाई अब इसको हम चेंज कर रहे हैं, जूस के जगह में जीसस. सो जीसस का बर्थडे को उन्होंने जीसस का बर्थडे बना दिया. ये नॉन बिलीवर, देवी देवताओं के नाम को शैतान ने अपने बीच में डाल दिया और हम लोग आज ये 25 दिसंबर को जीसस का बर्थडे करके मनाते हैं, जबकि वो जूस जो रोमन एक देवता था उसका बर्थडे था.
तो ये कितने दुख की बात है। सबसे बड़ी दुख की बात है कि बाइबल जो बाइबल सेमिनरीज हैं, बाइबल स्कूल्स हैं, उन लोगों को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और इस पे थोड़ा प्रोटेस्ट करना चाहिए। जैसे मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट किया था और प्रोटेस्टेंट बन गया, वैसे इन छोटी छोटी चीज़ों का हमको भी प्रोटेस्ट करना चाहिए, स्पेशली बाइबल स्कूल्स को। और इन चीज़ों पे आना चाहिए कि दीज आर द रॉन्ग थिंग्स, दीज आर द डिसेप्टिव, सो वी विल नॉट गो अकॉर्डिंग टू द डेविल्स ट्रिक। और डेविल इस प्रकार से हमको ट्रिक करता है और फंसा देता है फुसला करके। बाइबल को हम लोग कहते हैं बाइबल, जिसमें 66 बुक्स हैं, हिब्रू में उसको तनक कहते हैं। और तनक का स्पेलिंग है ता, नून एन काफ। और काफ जो है ये सफेद है। जब वर्ड के आखिरी में काफ होता है तो वो लंबा हो जाता है। तो पहला है तनक, ता। तैत जो है वो उससे तोरा बना है। तोरा के 5 जो किताब हैं उसको तोरा कहते हैं। वो तनक से पहला अक्षर हुआ तैत। दूसरा अल्फाबेट है नून। नून से बना है नवीम। नवीम मतलब नबी। हर नबी, जिसको प्रॉफेट कहते हैं हम या भविष्यवक्ता कहते हैं, उनको नबी कहते हैं। और उसके बाद जो बाकी किताबें बच जाती हैं उनको बोलते हैं किताब, किताबीम। एक किताब शब्द हिब्रू शब्द है। किताब से हम लोग को हिंदी में भी किताब बोलते हैं, लेकिन जब उसमें उसको प्लूरल बनाते हैं तो किताब से, कतूब से कतवीम हो जाता है। तो कतवीम, नवीम एंड तोरा, ये तीनों को मिलान से ये तनक बनता है। हिब्रू में तनक कहते हैं, हम लोग उसको ओल्ड पूरी बाइबल कहते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव। तो हमको मिल गया पता कि शैतान का नाम 359 है। 359 चैप्टर में वो अवेलेबल है। 359 डे को हम शैतान के डे को हमारा क्रिसमस मना रहे हैं, विच इज नॉट गुड। लेकिन फिर भी हम अब जब हिब्रू सीख रहे हैं तो हमें हमारी गलतियां या हमारे क्रिश्चियन सोसाइटी में जो गलतियां हैं वो हमको नजर आते जाएगा धीरे धीरे। हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन वी आर अवेयर ऑफ दिस नाउ कि किस प्रकार से शैतान हमें धोखा देता है, छिपाता है। तो आज के लिए इतना, और आगे हम फिर से जाएंगे नेक्स्ट लेसन में। और जब नेक्स्ट लेसन में जाएंगे तब तक के लिए मैं आपको कहता हूं लहित रो। दुनाई वैस्मरेखा यार दुनाई फनावलेखा वेही खनिगा ईसा दुनाई फनावलेखा इसी मलेखा शालोम शालोम शालोम।